Good morning, students. Today we are going to discuss about the genital fistula. Genital fistula, that is means the abnormal opening in between the genital tract, means urinary system and reproductive system and eliminatory system. Fistula is the abnormal opening or tract between the two adjective organs and structures. Means दो ऑर्गन्स के बीच में जो ओपनिंग अबनॉर्मल ओपनिंग होती है उसे हम फिस्टुला बोलते हैं. Genitourinary fistula. This is the abnormal communication between the urinary tract and the genital area. In this topic, urinary system and the reproductive system both are communicated. Like that, if the abnormal opening in between the urine and the vaginal part, that is means urine pass from to the reproductive tract. The next one is rectovaginal fistula. Rectovaginal fistula is a vaginula between to the vagina and the rectum. Introductions. Continue. Genitourinary fistula has effect on physical and psychological health of the women. Abnormal opening between to the two organs effect of the female physically like that, passing of the urine, uncomfort, total leakage of the urine full day, heaviness of the area, and psychologically mentally upset regarding to the health issues. Genitourinary fistulas are: first is vesicovaginal fistula, next is uretrovaginal fistula, next is urethrovaginal fistula, and next is varicose vaginal fistula. Sites of the fistula. First one is uretrovaginal fistula. This is the urinary urethra, this is urinary bladder, this is urethra, and this is a vagina. So abnormal opening, that is the fistula. Next is the perinovaginal. Perinovaginal, that is to the abnormal opening in between the space of rectum and the vagina. Vesicovaginal fistula. Vesicose means urinary bladder or vaginal, that is the fistula. Rectovaginal fistula, that is the rectum and vaginal abnormal opening fistula. Next is the vesicocervical. This is the cervix part of the uterus and urinary bladder, that is the vesicocervical. Next is the vesicouterine. This is the urinary bladder, so vesico, that is the uterus, this is the abnormal fistula in between the vesicouterine. Etiology. Most common causes of the vesicovaginal fistulas are: first one is the gynecological surgery and developing bore. नॉर्मली क्या होता है कि जब ड्यूरिंग टू द सर्जरी टाइम उसका कोई भी सर्जरी के टाइम अगर उसका नॉर्मली स्कार हो जाता है, टीयर हो जाता है, तो उससे फिस्टुला होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं. जैसे कि हिस्टेक्टमी के टाइम जब हम टोटली रिमूवल ऑफ द यूटरस करते हैं तो वजाइनल वॉल्स जो है वो यूरेथ्रा के साथ उनका टीयर जो है वो इजिली हो सकता है. एंटीरियर कॉल्प्रोफ्रेजी. जब कोई ऊपर सुपरफिशियल एरिया से हम कोई भी सर्जरी या लेजर्स को प्रोसेस करते हैं तो उससे भी पेशेंट्स को क्या हो सकता है कि फर्दर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. नेक्स्ट इज लेप्रोस्कोपी, पेल्विक सर्जरी एंड यूरोलॉजिकल सर्जरी. जब उसमें हम पेल्विक सर्जरीज होती हैं या फिर उसमें यूरोलॉजिकल कोई भी यूरिनरी ट्रैक की कोई भी सर्जरीज होती हैं तो उससे पेशेंट्स को जो है वो टीयर जो है वो इजिली हो सकता है. Risk factor during to the surgeries are previous surgery and fibrotic and endometriosis. जब तक कोई पेशेंट्स की कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, जैसे कि प्रीवियस सर्जरी हिस्टेक्टमी है या फिर लोअर सेगमेंट सर्जरियन सेक्शन ही हुआ है पेशेंट का. नेक्स्ट वन कोई भी फाइब्रॉइड ट्यूमर ग्रोथ थी या फिर इंडोमेट्रियल लेयर का डिसऑर्डर था, जिससे क्या होता है कि ट्यूमरस ग्रोथ को जब हम रिमूव करते हैं तो ये स्किन है वो थिन हो जाती है और इजीली फिस्टुला हो सकता है. या फिर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के होने के कारण इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेमेटरी के चांसेस बहुत कम है.
पेल्विक मालजेंसी, अगर उस एरिया में कोई भी ट्यूमरस ग्रोथ है जो या फिर कैंसर जो है वो पेल्विक एरिया का डेवलप हो चुका है। पेल्विक ट्रॉमा एंड रेडियोथेरेपी, अब वहाँ पे कोई भी ट्रॉमा हुआ है तो उसको हम रेडिएशन थेरेपी से क्योर करते हैं। तो रेडिएशन के साथ हम उसको बर्न करते हैं, तो बर्न करते करते स्किन के जो हेल्दी टिश्यूज है वो भी डैमेज हो जाते हैं और स्किन थिन होने के कारण वहाँ पे प्रेशर इंटरनली हायर होने के कारण वो जो टिश्यूज हैं उनमें अबनॉर्मल ओपनिंग जो है वो आ सकती है। नेक्स्ट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रॉमा इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, मीन्स ड्यूरिंग टू द प्रेगनेंसी, जैसे कि डेवलप हो रहे हैं बेबी है जो उसमें प्रोसेस में, तो ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रॉमा कोई भी जब ड्यूरिंग टू द डिलीवरी प्रोसेस लाइक दैट बेबी की ब्रीच प्रेजेंटेशन है, फोर्स ऑफ डिलीवरी, एपिजोडमी ऑफ नॉर्मलिटी, रिपेयरिंग, इस तरह से अगर कोई भी रीजन बनता है तो फर्दर वो इसमें जेनिटो यूरिनरी का फिस्टुला है जो उसको लीड करता है। बहुत कम चांसेस होते हैं इनमें कि कंजेनिटल या फिर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस से जो है अब नॉर्मल ओपनिंग हो। नेक्स्ट इज वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। प्रेजेंटेशंस एंड द सिम्टम, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन, लीकेज ऑफ द यूरिन, पेशेंट्स को यूरिन जो है वो लीकेज होगा, बिकॉज क्या है कि यूरिनरी जो ब्लैडर है वो यूरिन को कंट्रोल करके रखता है, मसल्स उसको कंट्रोल करके रखते हैं। जब अर्ज होती है तो मसल्स रिलैक्स होते हैं, यूरिन पास होता है। लेकिन विजाइनल्स में अगर उसकी अब नॉर्मल ओपनिंग है तो उससे क्या होगा कि यूरिन जो है वो विजाइनल के थ्रू जो है पास होता जाएगा, लीकेज ऑफ द यूरिन, पेशेंट्स को जो है वो डिस्चार्ज लगेगा। प्रोस्टेटिज्म एंड जेनिटल रीजन्स एंड थाइज, अब वहां पे वेटनेस जो है वो जेनिटल एरियाज और थाइज में उसको रहेगा। बर्निंग, मैचुएशंस एंड डायस्यूरिया, पेशेंट्स को जो है यूरिन पास करते समय बर्निंग सेंसेशंस होगी और पेशेंट्स को डायस्यूरिया, बार बार जो है वो यूरिन पास आउट होगा। नेक्स्ट इज कंप्लेन ऑफ इंक्रीजिंग वेजाइनल डिस्चार्ज इफ द फिस्टुला इज स्मॉल, अगर फिस्टुला जो है वो स्मॉल है तो पेशेंट्स को जो यूरिन है वो स्मॉल अमाउंट में पास होगा बाय टू द वजाइना, तो पेशेंट्स को यही कंप्लेन होगी कि उसको यूरिन जो है वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर फिस्टुला बड़ा है तो दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड कि पेशेंट को फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज होगा। Most common time into present in 5 to 10 days following surgery, अब इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सिम्टम इनमें आने में जब कोई भी जेनिटल ट्रैक की हम कोई सर्जरी करते हैं। तो कोई भी जेनिटल ट्रैक की अगर सर्जरी होती है तो मोस्ट कॉमनली हमने उसको ऑब्जर्व करना है 5 to 10 डेज। दिस इज द वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, urinary bladder and the vagina. Diagnostic, history of the incontinence immediately and to the several day after to the delivery of patient से हमने इमीडिएटली हिस्ट्री जो है उससे लेनी है और सेवरल डे आफ्टर द डिलीवरी हमने उसको ऑब्जर्व करना है। कोई भी ऑपरेट हुआ है तो डिलीवरी हुई है तो हमने उसके बाद में जो उसकी चेंजेस आई है बॉडी में उसके बारे में प्रॉपर डिटेल पूछनी है, कैसे केस हुआ था और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी, ये सारा आपने ऑब्जर्व करना है। अ लार्ज फिस्टुला कैन बी सीन बाय टू द एग्जामिनेशंस ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द लेफ्ट लैटरल पोजीशन एंड यूजिंग अ सिन स्पेकुलम, जो लार्ज फिस्टुला है उसको हम नॉर्मी मैनुअल एग्जामिनेशंस के साथ या फिर सिन स्पेकुलम एग्जामिनेशंस के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। Methylene blue dye test, that is the differentiated between to the vesicovaginal and to the urethrovaginal and to the uterovaginal fistula. Methylene blue dye test, इसमें क्या होता है कि ये बॉनिस 3 स्वैब का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या है कि हम अलग अलग लेवल्स के ऊपर एक कॉटन स्वैब की फॉर्म में टेम्पाउंस रखते हैं, वो हम यूरेथ्रस में अलग रखेंगे, यूरेथ्रोवेजाइनल में हम अलग रखेंगे, यूट्रोवेजाइनल में हम अलग रखेंगे और वेसिकोवेजाइनल में हम अलग रखेंगे। तीनों फॉर्म में हम उसको एक लॉन्ग, जहां तक कि यूरेथ्रे की लेंथ है वहां तक हम यूरेथ्रोवेजाइनल जैसे रखेंगे। तो यहाँ से यूरिन लीक होगा, वो उस एरिया को वेट करेगा। अगर वो उस एरिया को वेट करता है तो ये इजीली इंडिकेशंस होगी कि पेशेंट्स को फिस्टुला कहाँ पर है।
Next is the metal catheter and uterine sound passes through to the urethra to the appearance of the fistula opening into the vagina. अब इसमें मेटलिक कैथेटर और यूट्राइन साउंडर से हम पास करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि फिस्टुला की ओपनिंग किस एरियाज में है. One is the cerebral, 3 pieces of the swab kept in the vagina. Vagina में हम रखेंगे 2 cc of dilute of the methylene blue injections into the bladder by to the catheter. हमने by catheter उसमें 2 cc जो dilute कर देना है methylene blue injections. Its upper end to the middle piece of the stain, then to the vesicovaginal fistula. If none of the piece is stained blue, that is the wet in the urine and the uric acids. मीन्स अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो मीन्स जो वजाइनल डिस्चार्ज या है या यूरिन या यूरिक एसिड से कुछ भी नहीं होगा. इफ द लोअर पीस ऑफ द स्टेन बिलो दैट टू द यूरेथ्रल अबनॉर्मेलिटी मीन्स हमने उसको अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकली उसको रखना है जिससे पता चलेगा कि अबनॉर्मल ओपनिंग जो है वो कहाँ पे है फिस्टुला. इन्वेस्टिगेशन यूरिन कल्चर एंड टू द सेंसिटिविटी टेस्ट जो है हम करवाएंगे. रीनल फंक्शनिंग टेस्ट, यूरिया क्राइटेरिया, साइटोस्कोपी यूरिनरी ब्लैडर को प्रॉपरली इनर विजन होगा. नेक्स्ट इज द सीटी स्कैन होगी टू द कलर विजुअलाइजेशंस एंड टू द इजीली असेसमेंट ऑफ टू द फिस्टुला. इंट्रावीनस अर्गोग्राम्स टू द रूल आउट ऑफ टू द यूट्रोवाजाइनल फिस्टुला. उसमें अगर कोई भी अबनॉर्मेलिटी है दोनों में तो अनऑर्गन्स मीन्स क्या है, जो ऑर्गन है जो प्रॉपरली नहीं है तो उसमें नॉर्मल फिस्टुला जो भी डेवलप हुआ है उसके बारे में पता चलेगा. पाल्पेशंस ऑफ द फिस्टुला ड्यूरिंग टू द एनेस्थीसिया. अब हमने पेशेंट्स को जब एनेस्थीसिया देना है तो हम उसको पाल्पेट कर सकते हैं. बायोप्सी शुड बी टेकन इफ कॉजेस इज नॉट अननोन. अब अगर उसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है तो हमने इंडोमेट्रियस लेयर्स जो है उसकी बायोप्सी लेनी है, पीस लेना है वहां से कि हमें पता चल जाएगा कि फिस्टुला क्यों है, ड्यूरिंग टू द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है या ड्यूरिंग टू द ट्यूमरस ग्रोथ है. मैनेजमेंट ऑफ टू द वेसिकोवाजाइनल फिस्टुला. कंजर्वेटिव मेजर्स में हमने नॉर्मली पेशेंट्स को जो इन्वेंसिव एंड नॉन इन्वेंसिव प्रोसीजर्स जो है वो उसको मेजर करना है. नॉन इन्वेंसिव लाइक दैट किया वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, सो उससे बिहाफ से हमने पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट इज द इन्वेंसिव में जैसे कि यूट्रोसाउंड या यूट्रल कैथेटर डाल के हमने उसको ऑब्जर्व करना है. कम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर होंगे. कम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स में कम्प्लीटली जैसे कि हमने रिपेयर करना है, स्किन क्राफ्टिंग होगा तो हमने उसके लिए यूज करना है. मैनेजमेंट ऑफ द सिम्टम्स. अब अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं हमने उसकी मैनेजमेंट जो है सिम्टोमेटिक करनी है. जैसे इन्फ्लामेटर आ रही है, थाइस पे इचिंग आ रहा है, फाउल स्मेल आ रहा है, सो दैट इज द सिम्टोमेटिक, तो हमने उसको मेडिकेशंस के थ्रू उसको क्लियर करना है. बैरियर स्क्रीम इनकॉन्टिनेंसेस पैड. अब हमने पेशेंट्स को बैरियर स्क्रीम्स मीन क्या है कि पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे जिससे उसका जो एरिया है उस एरिया में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को प्रिवेंट करेंगे. और नेक्स्ट वन हम उसको क्या करेंगे कि ग्लूकाइंस होती है जो कि स्मॉल फिस्टुला होता है यूरिनरी ब्लैडर का, तो उस चीज़ को वो ब्लॉकेज कर सकती है, सील कर सकती है. इनकॉन्टिनेंसेस पैड. अब हम उसके ऊपर पैचेस लगा सकते हैं इनकॉन्टिनेंस जो कि वहाँ पे एक स्मॉल होल है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं. प्रोलेप्टिक एंटीबायोटिक्स देने हैं अगर उसको ये सिम्टोमेटिक के होने के कारण इन्फ्लामेशन है. इन्फ्लामेशन लाइक दैट अगर यूरिन जो है वो वेजाइनल में है तो एक्सेसिव वेटनेस या फिर के कारण तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो हो सकती है. Bladder damage during to the childbirth, that is the catheter for the 7 to 10 days and antibiotic is the coverage. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थिंग पीरियड के कारण अगर डैमेज हो चुका है या उसमें स्मॉल अबनॉर्मल ओपनिंग आ चुकी है तो हमने उसको 7 to 10 डेज तक कैथेटर पा के रखना है. इसके ऊपर से बाद में हमने मेडिसिन अप्लाई करनी है जैसे कि जो कि सील करेगी, उससे पेशेंट्स का जो अबनॉर्मल ओपनिंग है वो क्योर हो जाएगा. स्टेब्लिश फिस्टुला, वेट फॉर द 3 मंथ एंड रिपेयर. अब जो हमने फिस्टुला है जो उसको वेट करना है 3 मंथ के लिए एंड फिस्टुला फुल उसकी रिपेयर कर देनी है. फिस्टुला फॉलोइंग कैंसर. किसी भी कैंसर के कारण अगर फिस्टुला होता है बायोप्सी इज टेकन फ्रॉम टू द एज ऑफ द फिस्टुला. उस एरिया से हमने बायोप्सी पीरियड से लेना है. वेजाइनल रूट ऑफ रिपेयर. Latcazo procedures. In Latcazo procedures, we
repair the vaginal fistula. Flap slipting technique. Slipped means क्या है, उस एरिया के ऊपर एक पैच फॉर्म्स में से हम उसको स्प्लिटिंग प्रोवाइड करवाएंगे जो कि इन बिटवीन ऑफ वजाइनल या फिर यूट्रस है उसके बीच का जो है वो फिस्टुला है उसको प्रिवेंट करेगी लीकेज को. इन केस ऑफ द extensive fibrosis, then omental's graft and Gracil's muscles graft is applied. Omental's graft and to the Gracil's muscles. Gracil's muscles is find out into the thighs. So हमने पेशेंट्स का क्या करना है कि ग्राफ्टिंग कर देना है. ग्राफ्टिंग मीन्स क्या है कि वन स्पेस एरिया से हमने स्किन लेकर उस एरियाज में जो अबनॉर्मल फिस्टुला है उस चीज को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग रिपेयर करना है. इन केस ऑफ लार्ज एंड द हाई वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला, ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच इज परफॉर्म्ड. ट्रांसपेरिटोनियल्स में उस एरिया में हमने पेरिटोनियल लेयर जो है उसी चीज को ही हमने डेवलप कर देना है ताकि उस दोनों के बीच का जो है वो अगर फिस्टुला लार्ज है तो जो उसके बीचला फिस्टुला है उस चीज को रोका जा सके. Uterine fistula, injury of the uterus, most commonly following surgery, obstructions, transections, diverticulation. इससे क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग टू द प्रेगनेंसी, अगर इसमें कोई भी किसी भी रीजन के कारण फिस्टुला हो सकता है. ट्रांसैक्शंस, अगर कोई भी चीज का कोई भी प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे फिस्टुला को बर्न किया जा रहा है या फिर कोई भी फाइब्रॉइड्स है उसको क्लियर किया जा रहा है तो उसके कारण में पेशेंट्स को अफेक्ट हो सकता है. डिवर्टिकुलाइजेशन मीन्स क्या है, डिवर्टिकुलस में दैट इज द पाउचेस अबनॉर्मल डेवलपमेंट इनटू द पॉइंट्स ऑफ द वॉल. अब उसमें अगर उसमें कॉलम्स में जो है या ब्लैडर में वहां पे अबनॉर्मल जो है पाउचेस बन रहे हैं उसके कारण इजिली जो है वो यूरिन में क्या है कि फिस्टुला जो है वो डेवलप हो सकता है ड्यूरिंग टू द थिन लेयर. नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द यूट्राइन फिस्टुला. टोटल ऑब्स्ट्रक्शंस, उस एरियाज में जो टोटली ऑब्स्ट्रक्शंस हो चुकी है. डिटेक्ट अर्ली ड्यूरिंग टू द सर्जरी, रिमूवल ऑफ द लिगेचर एंड स्टेनिंग. अब उसमें जो किसी चीज को हमने रिमूव किया है या पेशेंस है तो हमने उसको जब डिटेक्ट किया तो उससे कारण जो अबनॉर्मल ओपनिंग जो है वो फर्दर हो सकती है. इफ डिटेक्ट लेट, यूट्राइन इम्प्लांटेड इनटू द ब्लैडर. अब इसमें क्या होगा कि यूरिन को जो है वो और टोटली इनटू द जो है वो प्लांट होगा ब्लैडर में. तो इससे क्या होगा कि अबनॉर्मल जो है वो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन हो जाएगा बिटवीन टू द यूट्रस में. ट्रांसैक्शंस में होगा, ट्रांसैक्शंस में दोनों का जो कम्युनिकेशन है दूसरी साइड से डिस्चार्ज जो वो होगा. पार्शियल्स में क्या होगा, साइटोस्कोपिक कैथेटराइजेशन एंड टू द स्टेनिंग ऑफ द यूरेथ्रा. अब इसमें क्या होगा, साइटोस्कोपिक कैथेटराइजेशन क्या होता है कि यूरिनरी में हम उसमें ब्लडराइजेशन प्रोवाइड कर देंगे या फिर वहां पे हमने स्टंट जो है वो उस एरिया को ब्लॉकेज करने के लिए अप्लाई कर देंगे ताकि जो उसका अबनॉर्मल ओपनिंग जो है वो बाय कैथेटर जो होगा, अदरवाइज अबनॉर्मल जो है वो ओपनिंग रुक जाएगा, लीकेज है जो कंप्लीटली रुक जाएगा. कंप्लीट anastomosis and implications of cut end of the bladder and uteronephrocystomy. अब इसमें हमने क्या करना है कि अगर लोअर लेयर पे होता है यूरेथ्रस में तो हमने यूट्रस जो है वो उसको टोटली रिमूव्ड कर देना है. इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूरेथ्रस एंड टू द ब्लैडर, उसमें हमने आर्टिफिशियली जो है हमें इम्प्लांट करना पड़ेगा जिसके कारण अगर उसकी जो लीकेज है या डैमेजेस है उसको हम बंद कर देंगे. टू कट द एंड ऑफ द ब्लैडर, हमने ब्लैडर के एंड से उसको कट कर देना है यूरेथ्रा को. वेस्को यूट्राइन फिस्टुला,
अब अगर ब्लैडर और यूट्राइन्स में फिस्टुला है तो यूजली कॉज ड्यूरिंग टू द सिजेरियन सेक्शन, ड्यूरिंग टू द नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस, सॉरी ड्यूरिंग टू द नॉर्मल चाइल्ड बीयरिंग सेक्शन द सिजेरियन सेक्शन। तो पेशेंट्स को मोस्ट चांसेस होते हैं कि सर्जरी के कारण उसको टीयर आ गया या नॉन सर्जिकल रिपेयर हो गया या पेशेंट्स ने आफ्टर सर्जरी जो है वो प्रॉपर केयर नहीं बरती, तो उससे सिजेरियन सेक्शंस के बाद पेशेंट्स को इजीली जो है वो वेसिको यूट्राइन फिस्टुला हो सकता है। कंप्लेन ऑफ द साइक्लिक हेमेटोयूरिया, पेशेंट इसमें क्या नॉर्मली कंप्लेन्स करेगा कि पेशेंट्स को हेमेटोयूरिया है। अब उसके यूरिन में जो है वो ब्लड पासेस होगा बिकॉज ड्यूरिंग टू द यूट्रस जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें से पास आउट होंगे। ट्रीटमेंट इज यूजली थ्रू टू द एब्डोमिनल रूट। अब इसमें एब्डोमिनल मीन्स क्या है, ओपन सर्जरी के थ्रू हम इसका जो है ट्रीटमेंट रिपेयर जो है वो पेशेंट की करेंगे। This is the uterus, this is the urinary bladder, and this is the fistula. Urethrovaginal fistula causes is developing in the countries like that anterior repair। अब कोई भी अपने उसका outer sided में कोई भी impairing हुआ है एक्सटर्नली जेनिटल एरिया का, तो पेशेंट्स में कॉजेस हो सकते हैं। वेजाइनल हिस्टेक्टमी किया है तो उससे यूरेथ्रा जो है वो टियर हो सकता है। अगर हमने वेजाइनल हिस्टेक्टमी की है, बाय वेजाइनल हमने उसकी यूट्रस को रिमूव किया है। यूरेथ्रल डिवर्टिकुलम्स और इट्स रिपेयर। अब यूरेथ्रस में क्या है कि उसकी जो लेयर है उसमें पॉकेट्स बने हुए हैं, तो उसकी हमने रिपेयर की थी, तो उससे भी जो थिनी और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो डेवलप हो सकता है। ब्लैडर नेक सस्पेंशन प्रोसीजर। अब ब्लैडर जो है वो उसकी नेक जो है वो कंप्रेस हो चुकी है। कंप्रेस क्यों होगी, या तो उसका यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका ट्यूमर है या फिर उस एरियाज में कोई भी वेजाइनल ट्यूमर जो है वो जो कि ब्लैडर नेक को कंप्रेस कर रहा है। कॉजेज इन डेवलपमेंट इन द कंट्री लाइक दैट किया जो कि नॉर्मली कंट्रीज में होता है वो चाइल्ड बर्थ के कारण ही होता है ड्यूरिंग टू द वेजाइनल डिलीवरी। यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट वन द सिम्टम इज द हायर अप इन द यूरेथ्रा। अब क्या होगा कि यूरेथ्रा से थोड़ा सा ऊपर होगा। इन कंटिन्यूज इनकॉन्टिनेंसी। अब जो यूरिन है वो लगातार पास होता रहेगा। फिस्टुला नियर द ब्लैडर नेक एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। रिकरेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस। पेशेंट्स को बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होगा। स्ट्रेस जो होगा वो इनकॉन्टिनेंस, यूरिन ऊपर प्रेशराइज्ड रहेगा। लो डाउन पेशेंट्स को जो है वो पेल्विक एरिया में डाउनवर्ड लगेगा, हैवीनेस फील होगी। स्प्रेइंग ऑफ द यूरिन एट द मैचुरेशन एंड पोस्ट मैचुरेशन ड्रिबल। जब पेशेंट जो है वो यूरिन पास आउट करने जाएगा तो उसको जो स्प्रेइंग होगा ड्यूरिंग टू द फिस्टुला, और पेशेंट्स को क्या है, ड्रिबलिंग मीन्स क्या है, उसको ड्रॉपिंग होती रहेगी। इवन देन अगर उसने यूरिन पास भी कर लिया है, मीन लीकेज होती रहेगी पेशेंट्स के यूरिन की। Urethrovaginal fistula management, that is the conservative with the urethral catheter। अब हम इसको क्या करेंगे कि यूरेथ्रल कैथेटर्स को हम इसमें इम्प्लांट कर देंगे, या तो अगर वो कैथेटर में डिवर्टिकुलाइटिस पाउचेस बन चुकी हैं तो उसको हम रिमूव करके वहाँ पे आर्टिफिशियल यूरेथ्रा जो है वो इम्प्लांट कर देंगे फ्रॉम द ब्लैडर नेक से, या फिर हम उसको नॉर्मली जो है कैथेटर्स के कारण उस स्किन को हील होने के लिए टाइम देंगे। सर्जिकल रिपेयर स्पेशलाइज सेंटर। अब हम इसके क्या करेंगे कि कैथेटर के थ्रू जो है वो यूरिन पास आउट होगा और पेशेंट्स को जो वहाँ पे अबनॉर्मल लीकेज थी यूरेथ्रो और वेजाइनल में उसको हम रिपेयर होने के लिए सर्जिकली रिपेयर कर देंगे ताकि जिससे वो फिस्टुला है वो क्लोज हो जाए। रिपेयर इज द मोस्ट कॉमनली थ्रू टू द वेजाइनल रूट। अब इसमें हम वेजाइनल रूट से थ्रू क्या है पेशेंट्स की रिपेयर करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। कंटिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज फॉर टू द 14 डे। अब हमें इसमें क्या रखेंगे, हमने कैथेटर डाल के रखना है ताकि अगर पेशेंट जो है वो उसका जो रिपेयर्ड वाला एरिया है वो वेट ना हो और ना ही उसके ऊपर प्रेशर हो। ये यूरिन है हम बाय कैथेटर ही पेशेंट्स को पास करवाएंगे। एडिक्वेट एंटीबायोटिक। पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी जो है वो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, तो हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक मेडिकेशंस देंगे। मेडिकेशंस के कारण पेशेंट्स को जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस के है जो रिड्यूस हो जाएंगे। नो वेजाइनल एंड टू द स्पेकुलम एग्जामिनेशन। अब हमने आफ्टर सर्जरी सम टाइम के लिए कोई भी वेजाइनल नॉर्मली एग्जामिनेशन या स्पेकुलर एग्जामिनेशन जो है वो नहीं करना है। नो इंटरकोर्स फॉर द 3 मंथ आफ्टर टू द सर्जरी एडवाइज टू द पेशेंट्स। जब उसने जो अपना रिप्रोडक्टिव सर्कल्स के अकॉर्डिंग उसका लाइफस्टाइल है या उसने सेक्स एक्टिविटी जो है वो 3 मंथ के लिए अवॉइड करनी है। सिजेरियन सेक्शन इंडिकेटेड फॉलो द सक्सेसफुल रिपेयर। अगर
जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी के टाइम उसको ये कॉम्प्लिकेशन आई है, तो इस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, उसको सर्जिकली रिपेयर कर देना है। लेकिन एडवाइस टू हर, उसके लिए ये कहना है कि फर्दर उसके लिए सिजेरियन सेक्शन है जो गुड मेथड है फॉर द डिलीवरी। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। First one is that detect high risk factor at the earliest during to the antenatal examinations या antenatal observations या so contracted pelvic and to the malpresentation. First we will observe the pelvic condition, pelvic type and malpresentations of the baby, like that कि normal vertex presentation is the normal presentations of the baby but the breech is the abnormal. So first check the presentations of the baby. अवॉइड द प्रोलॉन्ग लेबर। अब हमने क्या करना है कि पेशेंट्स को लेबर का जो सर्कल है उसको लॉन्ग नहीं होने देना है, अवॉइड करना है, बिकॉज जितना प्रोलॉन्ग लेबर रहेगा उतना पेशेंट के यूट्रस या फिर लोअर पेल्विक एरियाज में प्रेशर रहेगा और लिगामेंट्स जो है वो लूज हो जाएंगे। अवॉइड अनस्किल्ड फोर्सेप्स एप्लीकेशंस एंड रिस्क डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस। जैसे कि फोर्सेप डिलीवरी होती है, फोर्सेप डिलीवरी से क्या होता है कि बेबी को फोर्सेप्स में उसके हेड को लॉक करके बेबी की डिलीवरी जो है वो करवाई जाती है। इससे क्या होता है कि अगर अनस्किल्ड, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है फोर्सेप्स अप्लाई करने की, तो इसमें रिस्क नहीं लेना है ड्यूरिंग टू द स्टाफ ने। सो इससे क्या होगा कि पेशेंट्स को वजाइनल टीयर हो सकता है और नॉर्मल ओपनिंग जो है वो हो सकती है और यूरेथ्रल जो है वो डैमेज हो सकता है एक्सेसिव प्रेशर के कारण। डिटेक्ट इंजरी टू द ब्लैडर एट द अर्लीस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सेम। आफ्टर डिलीवरी या फिर अर्ली स्टेज में हमने उसको पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना है। कोई भी ब्लैडर अब नॉर्मली अगर उसको कोई इंजरी हुई है तो उसको ट्रीटमेंट जो है वो एट द सेम ही हमने उसको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। दिस इज द रेक्टम and this is the vagina, this is the uterus. So rectovaginal fistula is here. Clinical features: large rectovaginal fistula is incontinence of the both feces and the flutters of throw to the vaginas, means उसमें जो food stool जो है वो और as well as the gas passes from to the vagina. Small retrovaginal fistula, incontinence of the flutters through to the vagina, अब इसमें ओनली गैसेस जो है वो पास होगी। फाउल स्मेल वजाइनल डिस्चार्ज, अब पेशेंट्स का जो है वो फीसेस कंपोनेंट्स के कारण मिक्स होके जो वजाइनल डिस्चार्ज होगा उसमें जो स्मेल है वो फाउल होगी। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस इज द रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन। पेशेंट्स का हमने रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन करना है मैनुअली बाय द फिंगर्स, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटोसिग्मोइडोस्कोपी। अब इसके साथ हम उसको इनर साइडर्सिस्कोपी को प्रॉपर्ली विजुलाइज कर सकते हैं, जिसके कारण हम बाय टू द रेक्टम इसको इंसर्ट करेंगे और प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे। बेरियम एनीमा और टू द सीटी स्कैन कैन बी डेलिगनेट हाई रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। अब अगर हमने बेरियम एनीमा जो फिर सीटी स्कैन करेंगे, अगर पेशेंट्स का हाईली लेवल ऊपर जाकर जो है वो बिहाइंड ऑफ द रेक्टम जो है उसको फिस्टुला है, इसमें हम क्या करेंगे कि बेरियम एक डाया होती है उसको हम इंसर्ट कर देंगे, अनीमा दे देंगे। जैसे जैसे वो डाया जो है रेक्टम में फिलअप हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पे लीकेज होगी, वो डाया वो जो है वो यूट्रस में यूट्रस को जाना ट्रांसफर करना शुरू हो जाएगी, जिससे कि हम एक कलर्ड स्किन के द्वारा देख सकते हैं और हमारे पास वो एक कलर्ड स्किन में ब्लैक कलर की विजुलाइज होगी, तो हमें पता चलेगा कि इस एरिया पे क्या है, नॉर्मल फिस्टुला। यहाँ पे सीटी स्कैन से हमें उसका पता चल जाएगा। मैनेजमेंट, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। प्री ऑपरेटिव में हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस होते हैं: डॉक्यूमेंटेशनली प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर, नेक्स्ट वन इज द फिजिकली प्रिपेयर। Documentationally prepare,
फर्स्ट हमने पेशेंट्स को प्रॉपरली फाइल चार्ट बनाना है, कंसेंट फॉर्म उसको बताना है, उसका जो जितना चार्ज होगा उसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन आता है साइकोलॉजिकली प्रिपेयर। साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हमने पेशेंट्स को जो एंजाइटी है, फियर है रिगार्डिंग टू द सर्जरी, उसको हमने प्रॉपरली रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? अगर पेशेंट्स को हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर्स के बेनिफिट्स एंड उसके ड्रॉबैक्स भी पेशेंट्स को जरूर बताने हैं, तो इससे पेशेंट्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है रिगार्डिंग टू द सर्जरी, तो इसका जो एंजाइटी लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है बिफोर सर्जरी। द थर्ड वन इज टू द फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशंस में हमारे पास आएगा कि पेशेंट को हमने एंटीप्यू रखना है, जेनिटल एरियाज क्लीनिंग चाहिए, पेशेंट्स को मेडिकेशंस देनी है, पेशेंट्स को ड्रेसअप करवाना है ओटी, तो इस तरह की प्रॉपरली मैनेजमेंट जो है हमने पेशेंट्स को प्रोवाइड करवानी है। आफ्टर इज दैट इज द पोस्ट ऑपरेटिव प्रिपरेशंस ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दैट आफ्टर ऑपरेशंस हमने पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना है, यूरिनरी कैथेटर केयर देना है, जिस एरियाज की सर्जरी हुई है उस एरिया को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट वन इज टू द रेक्टल एनीमा। हमने पेशेंट्स को जो प्रेशराइज है उस चीज को रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट हमने पेशेंट्स को रेक्टम एनीमा देना है, ताकि उसमें जो स्टूल पार्टिकल्स है वो मूव हो जाए और पेशेंट्स का जो रिपेयर है वो इजीली हो सकती है। लो रेसिड्यूड फ्लूइड डाइट फॉर टू द 5 डे बिफोर टू द सर्जरी। अब हमने उसको जो फ्लूइड डाइट है वो उसको रिड्यूस कर देना है 5 डेज के कारण, जिसके कारण उसका जो कॉलिन्स है उसमें जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और फिर उसकी प्रोडक्शन या फिर उसका लीकेज जो है उसके बारे में नॉर्मल असेसमेंट होगा। इंजेस्टाइनल एंटीसेप्टिक न्यूमायसिन, हमने उसको मेडिसिन देनी है, मिकोसिन न्यूमायसिन क्या है, इंजेस्टाइनल एंटीसेप्टिक जो मेडिकेशन है हम उसको दे सकते हैं। विजाइनल डाउच, विजाइनल डाउच होता है कि क्लीनिंग ऑफ टू द विजाइनल विद टू द मेडिसिन एंड टू द नॉर्मल स्लाइन। रेक्टोविजाइनल फिस्टुला इज द लोअर थर्ड ऑफ टू द विजाइना। अगर लोअर पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट में है, लॉसन टेलर ऑपरेटर्स। लॉसन टेलर ऑपरेटर्स में क्या था कि इसका एक मेथड था जिसने इसने उस चीज को टोटली ब्लॉकेज करना होता है, लीकेज को प्रिवेंट करना होता है, तो उस एरियाज को इसने ब्लॉकेज करने के थ्रू टू द ऑपरेशन हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द कटिंग रिमेनिंग ब्रिज ऑफ द टिश्यू बिटवीन द फिस्टुला। अब जो उसके विचकार का जो आ रहे हैं टिश्यूज का हमने ब्रिज इम्प्लांट कर देना है, जो उसके विचकार की अबनॉर्मलिटीज जो है उसको, तो हमने उसको कट करके फिस्टुला की रिपेयर कर देनी है। कन्वर्टिंग फिस्टुला इनटू द कंप्लीट पेरिनियल टियर। अब उसमें हमने क्या करना है कि पेरिनियल टियर जो है उसमें फिर फिस्टुला हो सकता है, लाइक दैट द लोअर पोर्शंस ऑफ टू द पेरिनियल लेयर में वो आ सकता है। नेक्स्ट इज द रिपेयर इन लेयर लाइक इन द कंप्लीट पेरिनियल टियर। अब उसमें हमने टोटली स्किन की रिपेयर करनी है वॉल्स की, जिससे लाइक कैसे विजुलाइज्ड होता है कि पेरिटोनियल एरियाज जो है वो वहां का टियर है। अब नॉर्मल ओपनिंग इन दिस लेयर, bridge of the skin and springing of the rectum and to the vagina, that is the repairing of the peritoneum layer in between of the vagina and the rectum. Rectovaginal fistula is the middle third of the vagina, same as described of to the वर्टिकोवेजाइनल रिपेयर। वर्टिकोवेजाइनल रिपेयर्स में हमने क्या किया था कि पेशेंट्स को जो है वो प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट देना है, कंजर्वेटिव और सीमेंट मेजरमेंट करनी है, इसके बाद हमने उसको कंप्लीट सर्जरिकली उस चीज़ को ब्लॉकेज करना है। वेरियस क्रीम हम अप्लाई कर सकते हैं अगर फिस्टुला जो है वो स्मॉल है, और हमने प्रोलेप्टिक एंटीबायोटिक जो है पेशेंट्स को प्रोवाइड करने हैं। अल्टरनेटिव प्रोसीजर इज स्टार्ट एज ऑन द पेरिफोनेफ्रोपैथी and the rectorectal and to the extent of distended above the fistula। अब इसमें क्या होगा कि रेक्टोसेल्स में जो पेशेंट्स को अबनॉर्मलिटी है ड्यूरिंग टू द फीसिस पासिस करने में या उसमें अबनॉर्मलिटी है, तो हमने उसको अब जो है वो फिस्टुला उसको स्टेंडिंग जो है डिस्टेक्शन है वो उसका कर देना है, जिसके कारण वो उस एरिया में प्रेशराइज नहीं होगा। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला इज द अपर थर्ड ऑफ द वजाइना। अब वो अगर ऊपर जाकर है द थर्ड पार्ट वजाइनल्स के ऊपर सुपरफिशियल लेयर में है, पेरिटोनियम लोअर लेयर लेवल पे नहीं है। हाई रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला इज यूजुअली सराउंडेड बाय टू द डेंस फाइब्रोसिस, या इसमें टिश्यूज की अबनॉर्मलिटी के कारण होता है। डिफिकल्टी टू क्लोज वजाइनली, अब हम इसको क्लोज जो करना है वजाइनल दैट इज द डिफिकल्टी हो जाती है। बेस्ट डिले टू द एब्डोमिनल एंड टू द ट्रांसपेरिन
पेरिटोनियल्स। अब हम इसमें सर्जरी करेंगे एब्डोमिनल और ट्रांसपेरिटोनियल्स कैविटी के थ्रू हम उसको सर्जरी कर सकते हैं। वेजाइनल जो रिपेयर है वो पॉसिबल नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वल्वा वॉश विद टू द एंटीसेप्टिक आफ्टर टू द सर्जरी मैचुरेशन। अब अगर पेशेंट यूरिन सर्जरी के बाद यूरिन पास आउट होता है तो हमने उसको एंटीबायोटिक से वॉश आउट करना है वल्वस आउट पार्ट को। लो रेसिड्यू डाइट, अब हम पेशेंट्स को लिक्विड डाइट्स देनी है। इंटेस्टाइनल इज द एंटीसेप्टिक, अब हमने पेशेंट्स को एंटीसेप्टिक मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है। वेजाइनल पैक एंड रिमूवल आफ्टर टू द 24 आवर्स। वेजाइनल पैक मीन्स क्या है, जो कि हमने उस एरियाज में ब्लॉकेज रखी हुई है, पैक्स रखे हुए हैं, उसको हमने 24 आवर्स के बाद रिमूव कर देना है। लेक्सेटिव गिवन टू द अवॉइड टू द कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है ताकि जो कि है उसका रेक्टम एरिया के ऊपर प्रेशर हो। नेक्स्ट इज द इलेक्टिव लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन इज टर्म एडवाइज आफ्टर टू द रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर। अब अगर पेशेंट्स की रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर हो चुकी है तो पेशेंट्स इसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करता है तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शंस की पेशेंट्स को एडवाइस देनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।